Yeah. So, are you doing daily the good evening? Um, are you doing? Just give me a moment. I think some disturbance is there from my side. And now it's okay. Gratitude, of course, changes the life. Gratitude is the best thing this is the best gift we can gift ourselves. So, Correct. gratitude, yes. Daily, if we are practicing gratitude, and we are fortunate कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं एंड ग्रुप में जो मैं डेली एक्टिविटीज शेयर कर रही हूँ दैट्स कि ये मतलब आपको एक पैटर्न काम मिल गया सब बना बनाया मिल गया आपको करना है अदरवाइज क्या होता है कि अच्छा आज कल तो किया था आज फिर क्या करें आज फिर क्या करें सो डेली न्यू न्यू थिंग्स आर देयर जैसे मिरर वर्क है दैट इज अ ब्लेसिंग मेडिटेशन है उनके साथ तो एवरीथिंग इज जस्ट एडिंग ऑन सो लेट मी नो कि आप कंसिस्टेंटली आर यू डूइंग प्रैक्टिसेस with these all are you doing practices with all these things mirror work meditation gratitude because this week next week this all practices are going to be more intense that's great Hemant great to know and how are you feeling after doing please keep sharing in the chat box or you can unmute yourself 2 3 more minutes we will wait for rest of the participants to join and then we will go ahead so सी सी चेंज इज इन आवर चॉइस हम कितना चेंज अपने अंदर चाहते हैं और कितने कमिटेड हैं कमिटमेंट all things start with C's consistency and commitment Correct. कंसिस्टेंसी कमिटमेंट दोनों चीजें मिलके ही आपको आगे बढ़ाती हैं एंड यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ नोबडी एल्स इज गोइंग टू डिजाइन योर लाइफ नोबडी इज एल्स इज गोइंग टू हेल्प you this is the only you are the decision maker so next week we are going to be more intense so that's why I have put messages and I have asked personally also people are doing but they are not sharing and I want to make the group calls also next week I want to be more focused on this because we are going to sum up with this week this 21 days transformation challenge so I want कि next week में हम group calls मोड़ लें और इस ग्रुप में से फिर हम we will create a temporary group क्योंकि इसमें number of participants are more so that's why we are not able to make the group calls because that has certain limit so I will create a temporary group today so the people who are interested and willing to join that group they will DM me I will share the group link because I want to work with the people who are really committed see मुझे मुझे इसमें कुछ मिलना नहीं है but that is my just contribution to the society to make this because हम इस संसार में आए तो इस संसार को कुछ सुंदर बना के जाएं so with the going year going by I want to help all the people I want to hand hold all the people who are really committed so this week is the closing week of this 21 transformation and this is the intense work I want to work so that's why I want to have the group calls also on regular basis on every alternate days or maybe daily I'll have to because the later on in the session I will explain कि क्यों उसके लिए group calls जरूरी है daily different practices रहेंगी maybe कि वो उसमें भी नहीं हो पाए उसमें ओवरऑल है एंड आई जो डीप प्रैक्टिसेस है वो मैं आपको अपने साथ ही कराना चाहती हूँ सो दैट्स वाई कि ग्रुप कॉल्स भी रहेंगी शेयरिंग भी रहेंगी कहाँ कहाँ हम स्ट्रक हो रहे हैं आज हम समझेंगे कि कहाँ स्ट्रक हो रहे हैं सो शेल वी स्टार्ट Yeah. या ओके आर ऑल देयर डू यू हैव योर वाटर ग्लासेस डू यू हैव योर journaling diary are you doing journey Monica is doing very well with journaling she is sharing daily with me her journaling work so well done, Monica, and big applaud to you. So you are doing amazing work, and rest also are doing. But just share so that I could get to know कि काम कहाँ तक चल रहा है और कहाँ और करने की जरूरत है. Alright. So let's go ahead. Sukhwinder, do you want to say something?
यस मैम, जैसे भी आपने मोनिका मैम का कहा तो मैं भी उनके थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी न्यू है, मुझे नहीं इतना पता। लेकिन जैसे उन्होंने बीच में अपना डेली का डाला था कि मैं आज ग्रो आ गई, मैं उसके लिए थैंक यू करती हूँ। और मेरे मन में कभी नहीं ऐसे आया कि मैंने कभी मार्केट भी जाना होता है ना, तो मैं हम्म। सोचती हूँ पहले मेरे साथ कोई चले फिर मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाती ऐसे। तो हम्म। फिर तब से मेरे मन में भी है कि नहीं, मुझे भी अकेले करना है, मुझे भी है। तो मैंने सोचा था ना स्पेशल ना थैंक यू करूंगी मैम को। भाई हम्म। मैं आपका कोई कहना मान रहे थे नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ भाई सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि जिनको जो पहले ये कर चुके हैं प्लीज डाला करें, ताकि हमारे जैसे की थोड़ी हेल्प हो जाए, हमें पता चले कि क्या है, ताकि हमारे भी माइंड में कुछ आ जाता है जो हमें हाँ, कभी आया नहीं आइडिया। होता। हाँ, हाँ जी बस। यस सुखविंदर, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हमारा एक सेंटेंस भी किसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, किसके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, वी नेवर नो। एंड इफ वी बिकम द गाइडिंग लाइट फॉर समवन, जैसे अविनाश सर कीप शेयरिंग रेगुलरली कि मैंने ये किया, ऐसा हुआ, ही कीप शेयरिंग, सो इट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। मोनिका कीप शेयरिंग, सो दैट्स रियली अमेजिंग एंड ग्रेट और इंस्पिरेशन मैं फॉर अस। सॉरी फील कर रही हूँ कि मैं नहीं कर पाती, और एक्चुअली मैं 4-5 डेज पहले मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उसके उसमें तो कुछ भी नहीं कर ही नहीं पाई। मैंने आज मिरर का वो खोला है, बल्कि उसमें थोड़ा सा आपका देखा है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई फिर। Okay, we will pray for your brother's health and speedy recovery. May God bless him. Is he fine now? मैम उसकी एक आंख चली गई है। Oh my God. That's really bad. हॉस्पिटल अभी एडमिट ही है, जिंदल हॉस्पिटल में ही है। Oh, कोई बात नहीं, everything will be fine. Just have that trust. Have बस that यही trust. है फिर, हाँ, वही है ना, जैसे ग्रेटिट्यूड करना है भगवान का, तो यही होता है क्या चलो पता भगवान भगवान ने। ने बड़ी बड़ी लिखा हाँ। था, कुछ छोटे में हम्म। चला गया। अभी इसमें क्या ग्रेटिट्यूड देखोगे सुखविंदर? हाँ जी। इसमें क्या ग्रेटिट्यूड देखोगे? मैंने यही देखा कि आप तो मैम इससे बड़ा हो हम्म। तो भगवान ने छोटे में कर दिया हो, हम तो अब हम्म। यही ऐसे ही सोच सकते हैं। तो मैं हाँ, तो फिर भी बिल्कुल भगवान बिल्कुल। को थैंक यू बोला भी कि आप तो इससे बड़ा था, हम्म। आपने हम्म। इतने में कर दिया। लेकिन फिर भी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान कहीं ना कहीं से उसकी एक आंख की वाली कहीं ना कहीं से यूं हो कि ठीक हो जाए उसकी। वैसे डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं आएगी, फिर भी देखते हैं, वी विल यू सी। सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, भगवान करे कि ठीक हो जाए। येट भगवान ने उसको बड़ी मुसीबत से बचाया। सो हाँ दैट्स अ जी। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट कि चलो वो सेफ है। हाँ जी। वो सेफ है, दैट्स नाइस। हाँ जी। सो लेट्स ऑल वी ऑल विल प्रे फॉर योर ब्रदर्स हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी, मे गॉड ब्लेस हिम। Yes, yes. थैंक यू। यस, Lord, of course we will pray. So let's go थैंक यू। ahead with today's session. Just give me a moment. Give me a moment. Yes. So today we will be working with healing, receiving and harmonizing. अभी तक 3 weeks में हमने heal किया, receive किया, harmonize किया. Now let's go ahead. Third week is about forgiveness, releasing and receiving. So we will work with all these three: forgiveness, release and receiving, and we will live in harmony. Actually, where we are lacking, कहाँ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आज की हुई है, कहाँ हम स्ट्रक हो रहे हैं। द थिंग इज कि हम लोगों को अपनी लाइफ में हार्मनी नहीं क्रिएट करनी आ रही। क्योंकि इस लाइन को सिर्फ ना, अभी मैं आपसे एक शेयर करती हूँ। हीलिंग बिगिंस व्हेन वी स्टॉप केयरिंग व्हाट व्हाट वाज नेवर मीant टू स्टे। इसको, इस लाइन को रीड करो एक बार आप, बिल्कुल ध्यान से। इसको सिर्फ रीड ही नहीं करना, इसको आपको फील भी करना है। फील भी करना है। और अपने आप से पूछना है
कि दर्द जो जो हमने पकड़ के रखे हुए हैं, जो पेन्स हमने पकड़ के रखे हुए हैं, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एग्जॉस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हीलिंग कहाँ, जब हमें कोई पेन है, जब कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो ये जो जितने भी पेन्स हैं जो हमने पकड़ रखे हैं, क्या ये हमें सच में प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एग्जॉस्ट कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा? पोज करना। अभी तक हमने पोज करना सीखा, रुकना, ठहरना, वर्तमान में फील करना उसको सीखा, और अपने आप को प्यार करना सीखा, सेल्फ लव सीखा। बिकॉज जब तक हम अपने पुराने इमोशनल वेट को कैरी किए हुए हैं, जब तक हम अपने पुराने इमोशनल वेट को कैरी किए हुए हैं, तब तक हम अपनी नई लाइफ नहीं जी सकते। जैसे कि जैसे कि हम हमने अपने घर में कुछ नया इंस्टॉल करना है, नया अपने रूम में कुछ लगाना है, अपनी टेबल पर, तो पुराने को हटाना होगा। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नई सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें पुराने सारे पैटर्न्स को रिलीज करना होगा। अग्रीड? क्योंकि जब नया लाना है तो पुराना हटाना ही पड़ेगा। तो आज एक बार अपने हैंड्स को अपने हार्ट पे रखें, अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे एक बार, और अपने लेफ्ट हैंड को अपने बैली पर रखें, और आईज क्लोज करें। लॉन्ग डीप ब्रेथ लें एंड आस्क योरसेल्फ कि कौन सा इमोशनल वेट मैं कैरी किए हुए हूँ। विच इमोशनल वेट एम आई कैरिंग? इज देयर समथिंग, इज देयर समथिंग दैट इज कमिंग? क्या अंदर से आवाज आती है? कोई इमोशन जो बच गया, कोई ऐसा इमोशन, उसे आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अगर कोई इमोशन रह गया अभी, 2 वीक्स में हमने बहुत सा इमोशनल रिलीज किया जो भी हमें नहीं किया था। अभी कल की प्रैक्टिस में हमने पेपर लिख के अपने सारे फियर्स को रिलीज किया, फियर के इमोशंस को बाहर किया, अपनी लाइफ से उठाकर एक एक करके हमने इमोशन पे काम किया। अभी भी कोई पेंडिंग है? अभी भी कोई पेंडिंग है? इज देयर सम इमोशन पेंडिंग? Yes. ओके। Expectation. सॉरी? Expectation from others. That एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, येट ओके। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हमें बहुत सी कंप्लेन्स भी होती हैं। yes. और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो दैट क्रिएट्स पेन, दैट क्रिएट्स कंप्लेन्स, दैट क्रिएट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से ही हैं, जो हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं। और सबके अंदर से मोर और लेस यही आवाज आई होगी कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया होता तो काश उसने ऐसा किया होता, उसने क्यों नहीं किया, काश ऐसा किया होता, क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं करता, या वो आगे भी नहीं करेगा। सिर्फ ये तीन ही सवाल आते हैं मन में। सो वो दैट्स वाई आई से कि फॉरगिवनेस हील्स। हमें सबको फॉरगिव करना है। अब फॉरगिवनेस क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगिवनेस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस से आप क्या लगाते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगिवनेस? माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरगिवनेस? व्हाट इज फॉरगिवनेस? इज इट टू फॉरगेट व्हाट दे हैव डन टू यू? इफ यू से कि जो उन्होंने किया उसको फॉरगेट कर देना, तो देन सॉरी, इट इज नॉट। फॉरगिवनेस इज नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने किसी ने गलत कर दिया उसको सही कह दें और वापस उसी सिचुएशन में हम चले जाएं। या फिर ये फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को वापस लेना, अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना, अपने इमोशनल लूप को क्लोज करना। क्योंकि जब हम किसी के साथ शिकायत में बंधे हैं, कंप्लेन्स में बंधे हैं, तो हमारा जो है फॉरगिव, हमारा जो है वो लूप चलता रहता है। वी कीप
कंप्लेनिंग अपनी एनर्जी को डाउन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो कंप्लेन्स का लूप चलता रहता है। हमारा वाइब्रेशन लोअर नोट पे चलता जाता है कॉन्टिन्यूसली। सो दैट्स वाई फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट इज अबाउट फ्रीइंग आवर सेल्फ। एंड बड़ी मजे की बात है, बहुत मजे की बात है कि जब हम किसी से कोई कंप्लेन करते हैं जिसको माफ नहीं कर सकते, तो उससे हम बंधे हैं, उससे हम बंधे हैं, वो हमसे बंधा है और हम उससे बंधे हैं। तो जब हम किसी को माफ कर देते हैं, तो हम उसे भी फ्री करते हैं और खुद को भी फ्री करते हैं। बहुत बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम हम ये कहते हैं कि हम एज अ पेरेंट्स हमने बेस्ट किया, लेकिन जब अथॉरिटी फिगर उन्हें टोकते हैं तो अंदर से बच्चा हर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें, हमारे अंदर कुछ वोंडेड पड़ा हुआ है, हमारा इनर चाइल्ड वोंडेड पड़ा है। और कोई ऐसा रिलेशनशिप जहां ट्रस्ट टूटता है और आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब कभी नए कनेक्शन बनते हैं ना, तो आप गार्ड लगा लेते हो। ट्रस्ट टूटा, हमने नए कनेक्शन बनाए, परंतु जैसे ही हम आगे बढ़े, तो हमने फिर नया रिलेशनशिप, नया कनेक्शन बनाने में अपने आप को वहां पर सेव कर लिया कि नहीं, ये नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जो हम पहले वाले को माफ नहीं कर पाए, पहले वाले इंसिडेंट को, पहले वाली लाइफ में जो ट्रॉमा हैपन हुआ, उसको साफ नहीं कर पाए, तो हमारी एनर्जी वहीं स्टक हो गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि फॉरगिवनेस इज नहीं कि हम खुद दूसरे को माफ कर दिया, दूसरे की बुरे किए को, अच्छे किए को सब कुछ भूल गए। नो, दैट इज अबाउट फॉरगिविंग, एक्सेप्टिंग, acceptance, a great acceptance, and making them free and freeing ourselves. So forgiveness is a gift you give to yourself. And उन सब में भी मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम फॉरगिव करते हैं सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी। क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें तो हमें खुद से रहती है ना। हाई वाइब्रेशन चैलेंज के डे के, हाई वाइब्रेशन चैलेंज के फर्स्ट डे में मैंने तीन चीजें आप सबसे रिक्वेस्ट की कि आज आप पूरा दिन ना तो कोई कंप्लेन करेंगे, ना कंपैरिजन करेंगे, और ना क्रिटिसाइज करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमें दूसरों से कोई शिकायत नहीं, परंतु खुद से तो शिकायत है। मुझे सारी शिकायतें खुद से, और सबसे ज्यादा शिकायतें खुद से ही हैं हमें। अगर बैठ के देखें ना, तो हम आधा टाइम खुद से ही कहते हैं कि यार ये मैं ऐसे कर लेते, मैंने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा ऐसा करके हम खुद को कंप्लेन्स में झोंकते जाते हैं, झोंकते जाते हैं, झोंकते जाते हैं, और उस लूप में फंसे रहते हैं। सो दैट इज, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगिविंग अदर्स, सबसे पहले खुद को। जैसे हमने सेल्फ लव, क्योंकि अभी पूरे 2 वीक्स हमने सेल्फ लव को डिवोट किए, अपने फियर्स को, ट्रोमास को, जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनको रिलीज किया, अपने इनर चाइल्ड को प्यार करना सीखा, जो वोंडेड पड़ा था उसे स्नेह दिया, उसे दुलार दिया, उसे प्यार दिया, और ये सब हमने अपने लिए किया। अभी फॉरगिवनेस ये भी हमें खुद को करनी है, खुद के लिए करनी है। तो इसका मतलब कि ये जो हमने गलत डिसीजन लिया, जो हमने गलत पर्सन चूज किया, अपना टाइम वेस्ट किया, हम कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए था। हम अपने आप को परफेक्ट, कि मुझे ही नहीं पता, मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मुझे ही अपनी समझ नहीं है। तो उस समय हम बिगेस्ट कंप्लेंट्स तो हम खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे। तो सेल्फ फॉरगिवनेस इज, सेल्फ फॉरगिवनेस इज फॉरगिविंग सेल्फ एंड टू रिस्पेक्ट सेल्फ, खुद का आदर करना। बिकॉज जब हम अवेयर होते हैं ना, हीलिंग्स, जब हम फॉरगिव करते हैं तो इससे हमारे रिलेशनशिप हील होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होती है, अंडर अवेयरनेस से हमें अंडरस्टैंडिंग आती है, और बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो उससे रिस्पेक्ट आती है, और द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट्स योर सेल्फ अवेयरनेस। So before I move ahead, I would like to have you with some practice. Got the water with you? Have you got the water with you? Okay. Okay. Sit straight. आज हम एक फॉरगिवनेस की बहुत प्यारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम मनी के ऊपर भी चलेंगे, क्योंकि मनी के साथ भी हमारे बहुत से ब्लॉक्स हैं। तभी हम सोचते हैं कि हम काम तो बहुत करते हैं, पर मनी रुकी हुई है कहीं ना कहीं। ओके, प्लीज सिट से स्ट्रेट। सभी स्ट्रेट हो जाएं, एंड इफ पॉसिबल जस्ट switch on your cameras.
And sit straight, have a sip of water. हीलिंग लाइक जब वी डू लेफ्ट हैंड पे वाटर, राइट हैंड से उसको कवर करें एंड जस्ट विद इंटेंशन कि आप किसे माफ करने वाले हैं और उस माफी से किसको फ्री करने वाले हैं आप. जस्ट यू विल सेट योर सेल्फ फ्री with the forgiveness. So today you are going to be grateful for the moment and forgive. Okay, keep aside the water, sit straight, take a long deep breath in and out, in and out. लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर. लंबी गहरी श्वास अंदर और अपनी नाभि तक महसूस करेंगे. नाभि उठ रही है और श्वास के साथ, और बाहर जाती श्वास के साथ नाभि गिर रही है. जस्ट विजुलाइज कि आप एक रूफ पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं. देखें आपने पाँव में क्या पहना है, फील करें और 2 कदम कल्पना में चलेंगे. इमेजिनेशन में स्टार्ट वॉकिंग. स्टार्ट वॉकिंग. टेक वस्ट. सबसे पहले अपना राइट फीट आगे करेंगे, राइट फीट को आगे रखेंगे, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. एक एक कदम करके आप आगे बढ़ रहे हैं. इस तरह से करके कुछ कदम चलने के बाद आपको स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं, सीढ़ियाँ. टोटल 10 स्टेयर्स आर देयर. 10 सीढ़ियाँ हैं और 10 सीढ़ियों के बाद एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, गेट, गोल्डन गेट. वो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत सुंदर दरवाजा है. अब आप सीढ़ियों से उतरना शुरू करेंगे. पहली सीढ़ी पर दायां पांव, राइट फीट रखेंगे. राइट फुट ऑन फर्स्ट स्टेयर, लेफ्ट फुट ऑन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th. जैसे ही आप 10th स्टेयर पर पहुंचे, आपके सामने बड़ा सा दरवाजा. ये 10th स्टेयर जो है बहुत बड़ी है. जो स्टेयर्स में एक बड़ा स्पेस आता है वो है. आप इस पर एक कदम चले और इस दरवाजे तक आपका हाथ पहुंच गया. अब उसे पकड़कर आपने अंदर की तरफ धकेला और वह दरवाजा खुल गया. वो दरवाजा जब खुला तो सामने सुंदर बगीचा है, गार्डन, अ ब्यूटीफुल गार्डन. उस गार्डन के अंदर आप चले गए. आप उतरे तो आपने अपने पाँव में जो फुटवियर्स पहने थे उतार दिए एंट्री पर ही गार्डन के, क्योंकि आप वहाँ की ग्रीन ग्रास को, ब्यूटीफुल फ्लावर्स को फील करना चाहते हैं. अब नंगे पाँव आपने वहाँ की ठंडी ग्रास पर चलना शुरू किया. आप उस ग्रास को अपने पाँव में फील कर पा रहे हैं. आसपास सुंदर फूल खिले हैं, उनकी खुशबू को आप फील कर पा रहे हैं. आपके फेवरेट फ्लावर्स भी हैं उनमें से कुछ. पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है.
कहीं दूर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। आपने उस बगीचे में अंदर चलना शुरू किया, और आगे और आगे, चलते 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 सामने दूर से आपको एक बेंच दिखाई दिया। आप थोड़ा आगे गए तो आपको अपनी मदर वहाँ बैठी दिखाई दी। आपकी मदर बैठी हैं। आप अपनी माँ के पास गए, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। और घुटनों के बल वहीं बैठ गए। अपनी माँ के, अपनी मदर के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी मम्मी। बहुत बार ऐसा हुआ कि आप चाहती थी मेरा भला, परंतु मैंने गलत समझा। आपने मुझे कुछ कहा, मैंने उसे नेगेटिव वे में लिया, और हमेशा उस पर हम इरिटेट हो गए। प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई मामा। प्लीज फॉरगिव मी। मैं कितनी गलत थी, कितने गलत थे हम वहाँ, कि आपको नहीं समझ पाए। प्लीज फॉरगिव मी मामा। मैं आपके इंटेंशन को नहीं समझ पाई। आपकी माँ आपकी तरफ देख रही है लगातार, प्यार से आपके हाथ थामे हुए। आपकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, जिनमें सारी शिकायतें धुल रही हैं। आपकी मदर की आंखों में भी आपको देखकर आंसू आ रहे हैं, और सारी शिकायतें, सारे शिकवे, सब ग्रजेस धुल रहे हैं। आपने अपनी माँ की गोद में सर रख लिया। आपकी माँ ने आपके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम खूब तरक्की करो। अपने जीवन में खुश रहो। आपकी माँ ने आपके सिर पर हाथ रखकर बहुत से आशीर्वाद दिए। फील कीजिए अपनी माँ के हाथ को आपके सिर पर। और अब आपने वहां से खड़े होकर माँ से विदा ली, और वहां से चल पड़े उसी बगीचे में। थोड़ा और आगे गए तो एक रेड कलर के बेंच पर आपके पापा बैठे दिखाई दिए। आपके पिता, आपके फादर। आपको देखकर उनकी आंखों में एक चमक आई, और आप अपने पिता के पास उनके हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठ गए, और पापा की आंखों में डालकर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। आंखों में आंखें डालिए पापा की अपने।
और देखिए क्या देख पा रहे हैं आप, क्या फीलिंग है आपके लिए। उनमें सिर्फ प्रेम है आपके लिए, एक ख्याल, एक केयर। अपने पापा की आंखों में डालकर, आंखें डालकर देखा। तो पापा से कहिए, पापा से कहिए कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ पाया। आपकी डांट को, आपके टोकने को मैंने अदरवाइज लिया। मुझे उस बात का अफसोस है। प्लीज फॉरगिव मी पापा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी पापा। आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू पापा। आपके पापा ने आपको गले लगा लिया और बहुत सा प्यार किया और बहुत से आशीर्वाद दिए। दोनों की आंखें नम थी। सारी शिकवे, सारी शिकायतें धुल गई। और अब आपने वहां से भी अपने पापा से विदा ली। मन नहीं कर रहा था वहां से जाने का, पर आप चल पड़े। थोड़ा आगे गए। ये क्या, थोड़ा आगे चलते एक बेंच पर वो पर्सन बैठा है जिसने आपके साथ सबसे बुरा किया जीवन में, जो आपके जीवन के सारे दुखों की जड़ है। कोई एक व्यक्ति जो आपके लिए अभिशाप के समान है, जिसकी याद भी आपके तन बदन में सिरहन पैदा कर देती है, वो बैठा है। जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते, वो पर्सन वहां बैठा है। उसके पास जाइए और उससे बोलिए, उसके पास बैठ जाइए आराम से और बोलिए कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा नफरत की। आई एम सॉरी। तुम ही तो थे जो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का अवसर बने। यू वर लाइक जस्ट लाइक अ किक फॉर मी। तुम्हारी ठोकर से तो मैं आगे चल पाया। और मैंने तुम्हें इतनी नफरत की, तुम्हारे लिए इतनी शिकायतें हैं मेरे मन में, परंतु अब और नहीं, क्योंकि इन शिकायतों के कारण हम दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। और आज हम वो सारे बंधन खत्म करने वाले हैं। तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुमसे बंधा रहा शिकायतों के द्वारा, जबकि मैं तुमसे आजाद होना चाहता था। मैं तुम्हें भूल जाना चाहती थी, परंतु शिकायतों के रूप में ये बंधन बना रहा। सो आज से सारी शिकायतें यहीं खत्म करते हुए हम दोनों आजाद। और जैसे ही आपने उसे ये कहा कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने तुमसे बंधन बना के रखा, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, कि मैं तुम्हारी वजह से जो आज हूँ, वो मैं आज तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने मुझसे वैसा नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, एंड यू कैन गो। जैसे आपने उसे आजाद किया, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने, उस घटना ने वहां से चलना शुरू कर दिया। और दूर 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 वहां से वो व्यक्ति, वो पर्सन आपकी नजरों से ओझल होता गया और कहीं दूर विलुप्त हो गया, गायब हो गया।
फिनिश्ड। उसकी याद भी नहीं है अब आपके पास, और आप आजाद हैं। उस हल्केपन को, उस आजादी को महसूस करें। आपका मन जो इतना बोझिल था, वो बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल आजाद, शांत और एकदम हल्का। अब उसी बेंच पर बैठकर आपने अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखे, और इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो आप हैं, उससे बोला, अपना नाम लेकर बोलिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, यू फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें इतना तंग किया, तुम्हें शिकायतों के बोझ से ढक कर रखा, तुम्हें इतना बांध कर रखा। परंतु अब तुम आजाद हो, और मैं आज से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वहीं बैठे हैं आप, और बहुत हल्का, इतना हल्का, हवा के समान हल्का महसूस कर पा रही हैं। सारे विषाद, सारे चिंताएं, सारे शिकायत, सारे डर, सब धुल गए आंसुओं में, और आप हल्के हो गए। मानो बारिश के बाद जैसे सारी प्रकृति धुल जाती है, वैसे ही आपके आंसुओं की बारिश में सब विषाद धुल गए, सब शिकायतें, सब शिकवे, सब धुल गए, और आप आजाद हैं, हल्के हैं हवा के समान। अब आपने उठकर वहां से चलना शुरू किया वापस उसी द्वार की तरफ। कल्पना में उसी द्वार की तरफ चलना शुरू करें। वापिस आए, अपने जूते चप्पल जो आपने दरवाजे तक उतारे थे, उन्हें ग्रेटिट्यूड के साथ फिर से पहने, और वापस मुड़कर उस गार्डन की तरफ देखें जहाँ से आप इतनी अच्छी, तरोताजा, नए जीवन से भरी आशाएं लेकर आ रहे हैं, उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, और एक नया सेल्फ लेकर आ रहे हैं। न्यू और न्यू यू, जो आज़ाद है, जो फ्री है सभी शिकायतों से, फ्री है सभी बोझ से। उस गार्डन को धन्यवाद करें। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ से आपने सब हटा दिया और उसे आज़ाद कर दिया, सारे बोझ उतार दिए आज। एक नज़र उस गार्डन को देखकर वापस मुड़े, उस दरवाजे से अंदर आए, उसे बंद कर दें, और वापस सीढ़ियों पर चलना शुरू करें। दायां पांव 10वीं सीढ़ी पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आप वापिस जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। अब वहाँ ऊपर से खड़े होकर उन सीढ़ियों को, उस दरवाजे को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। स्वयं का धन्यवाद करें। इस वर्तमान क्षण का धन्यवाद करें, उस असीम परमात्मा का धन्यवाद करें, इस डिवाइस का धन्यवाद करें, सभी का। अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाते हुए 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, और दोनों हाथों को रख करके वर्तमान क्षण में वापस आ जाए।
Come back to the present moment. कैसा लग रहा है आप लोगों को? मन से बोझ उतर गए सारे? You are on mute. Please unmute yourself. Yes, now you are. Yeah, realize power of forgiveness. Yeah. Forgiveness is a very great, great power. So, how was your experience after doing forgiveness, forgiving the others? And it was actually subconscious mind में. इसको आप multiple times करें. जब भी मतलब आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, तो आप इसको गो बैक. हमें एक पर्सन से शिकायत नहीं है, आज तो हमने एक पर्सन के लिए किया. Yes. जिस जिस पर्सन से शिकायत है, बिकॉज शिकायत हमें बांध के रखती है. शिकायतें, कंप्लेन्स हमारा बंधन है. तो हमें एक एक करके सबको माफ करना है, सबसे फ्री करना है खुद को, और खुले आसमान में, मस्त गगन में पंछी की तरह उड़ना है. तो जितने निर्भर होंगे, शिकायतों से बाहर होंगे, उतना ही फ्रीली उड़ पाएंगे. सो जस्ट डू इट, कि अपने अपने मन से सारे बोझ उतारने हैं. वो ही हमें, यस. तो आप, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, देन वी विल गो अहेड विद द फर्दर. कुछ और चीज़ें भी हमें आज करनी है. ठीक है, आज का सेशन बहुत पावरफुल और बहुत इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स गो अहेड. अदरवाइज यू कैन शेयर इन द ग्रुप. आप शेयर कीजिए, जैसे अभी मोनिका ने शेयर किया, कईयों को इंस्पायर किया. सो वी हैव ऑल्सो टू फ्री. क्योंकि लिविंग स्ट्रेस फ्री क्या है? जस्ट अ मिनट. तो अभी हमने, हमारी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा बॉन्डेज है, बाउंडेशन है क्या? क्योंकि हम शिकायत करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप कभी भी हार्मनियस नहीं हो पाते. अगर आप सभी शिकवे, शिकायतें, सभी कंप्लेंट्स को माफ करना सीख लें, तो आपके रिश्ते हार्मनियस होते जाएंगे. शिकायतें होनी बंद हो जाएंगी. शिकायतें अभी तो आएंगी कुछ टाइम, बट धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी. फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे. राइट. तो हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि स्ट्रेस जब हम अपना इमोशनल लोड जब हम रिड्यूस करते हैं, तभी स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं. स्ट्रेस है क्या? इमोशनल लोड. और जब हम इस काम की डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि काम में इट्स अ नेसेसिटी फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. जब तक हम काम नहीं है, अच्छा एक, तब तक हम अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती और ना ही मीनिंगफुल लाइफ हम जी पाते. अभी मुझे ये बताइए कि मनी से रिलेटेड जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, उस पे कौन कौन काम करना चाहता है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू वर्क अपॉन मनी ब्लॉकेजेस? ओके. ओके, लेट्स गो अहेड. चलिए, करते हैं आज. हैव यू गॉट योर बिल्स? मैंने बोला था कि सभी ने पुराने जो बिल आपने पे किए, वो अपने पास रखने हैं. जी, हैव यू गॉट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट? है सबके पास पुराने जो बिल पे कर दिए आपने अभी? ओके, ठीक है. नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं. रिसीविंग. ओके ओके, दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट. चलो, बाद में आप कलेक्ट कर लेना. मैंने ग्रुप में ना मैसेज शेयर किया था. बिकॉज प्रोस्पेरिटी इज ईज, सपोर्ट एंड फ्लो. मनी इज फ्लो. मनी इज एक्चुअली, व्हाट इज मनी? मनी इज एन एनर्जी, और वो फ्लो करती है. नहीं, पे आपके हस्बैंड करते हैं मोनिका, बट आपके पास उनकी रिसीट तो पड़ी होंगी. आपने अभी, जैसे आपने अग्रोवा गया तो आपने कुछ पेमेंट की होगी, या कुछ भी जो भी, चाहे आपने 5 रुपए का ही बिल पे क्यों ना पे किया हो, चाहे आपने ऑनलाइन किया होगा, तो आपके फोन में कुछ पड़ा होगा पेमेंट का.
कुछ भी, कुछ भी हो सकता है वो। चाहे आपने 10 रुपए का समोसा क्यों नहीं खाया हो, 10 रुपए का आता नहीं है वैसे, वो ही उठा सकती हैं। ठीक है। और रिसीविंग मीन्स ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है रिसीव करने के लिए। बिकॉज स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है अबंडेंस के लिए, यू हैव टू बी विद फ्लो। मनी इज एनर्जी एक्चुअली। व्हाट इज मनी? मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी तो है ना। जैसे कि Yes. अभी अभी मैं जब पर्सनल काउंसलिंग सेशन, तो आई डोंट से कि मुझे इतना चार्ज करना है, आई से कि आई एम गेटिंग एनर्जी एक्सचेंज। मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई एनर्जी, और बदले में आप एनर्जी मुझे देते हैं। तो वो एनर्जी आप किस रूप में दे सकते हैं? आप मनी के रूप में। सो दैट मनी इज, बिकॉज मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी मैं यहाँ पे। एक बार एक सन और फादर, दे वर पासिंग थ्रू अ विलेज। तो रास्ते में जब वो गांव पार करने लगे, तो एक नदी आई छोटी सी, मतलब उसमें से नहर जो भी गुजर रही थी। तो बाप बेटा थे, वो किनारे पर खड़ा हो गया बेटा। उसके पिता ने कहा कि जाओ पार करो इसको, छलांग लगाओ, पहुंच जाओगे, छोटा सा ही तो, इसकी विड्थ तो बहुत कम है, जस्ट क्रॉस इट। तो बेटे ने जंप किया, तो वो बीच में ही रुक गया, क्योंकि बहुत, उसको बहुत लंबा लॉन्ग जंप नहीं कर पाया। और फादर ने तुरंत कर ली। तो बेटे ने कहा कि पापा आपने कैसे कर लिया इसको क्रॉस? उसने कहा मेरी जेब में ना एनर्जी थी। तो उसने कहा कि कैसे? कहते मेरी जेब में पैसे थे, वो गीले हो जाते, इस चक्कर में मुझे कूदना ही पड़ा। सो मनी इज एन एनर्जी दैट कीप्स यू गोइंग। सो दैट्स वाई मनी इज एन एनर्जी। तो एनर्जी को रिसीव करने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए कि हम डिजर्व करते हैं, वी डिजर्व। तो रिसीविंग डज नीड अ ट्रस्ट। ओके। तो उसके लिए हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हम शिफ्ट कहाँ करते हैं? फ्रॉम लैक टू फुलनेस। व्हाट यू अप्रिशिएट एक्सपैंड्स, क्योंकि ग्रैटिट्यूड टर्न्स इनफ इनटू मोर। अभी आपको एक प्रैक्टिस करवाती हूँ छोटी सी। आप अपना बिल लीजिए, अपना बिल लीजिए, जो भी आपने पे किया, उसकी तरफ देखिए आपने कितने का भी बिल पे किया। तो आपके पास वो था तभी तो बिल कर पाए पे, तभी बिल पे कर पाए ना। सो हम जनरली क्या कहते हैं कि ओहो इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, ओ इतना बिल आ गया, बहुत खर्चा बढ़ गया, बहुत खर्चा बढ़ गया। तो वी आर इन द कंप्लेनिंग मोड। आपके पास जो बिल आया, आपके पास पैसा भी आया उसके लिए, कहीं ना कहीं से आया, कहीं ना कहीं से आपने अरेंज किया। अगर उस समय वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं हो पा रहा, तो पिछला बिल जो उठा लो, जो आपने पिछली बार पे किया था, उसके पीछे अभी आपने आज क्या करना है, कुछ रिसीट्स कलेक्ट करनी है, और उनकी बैक साइड पे लिखना है थैंक यू फॉर पेइंग दिस बिल, थैंक यू आई कुड पे दिस बिल, थैंक यू मैं ये बिल भर पाई या भर पाया। उसके पीछे लिखना है ग्रैटिट्यूड, उस बिल पेमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है कि थैंक यू मनी फॉर इनेबलिंग मी टू पे दिस बिल। थैंक यू मनी। अगर आपने ऑनलाइन को पेमेंट की, तो अपने आप को ही मैसेज करके छोड़ दो, और जितने भी बिल पे करो ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। आज से अपना एटीट्यूड चेंज करो। और ज्यादा आ जाए कम आ जाए उसके लिए कभी भी कंप्लेन नहीं करना। तो अ, ये एक ना बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें भी इसके बारे में कि गरीबी हमारे, मतलब हमारे पास अबंडेंस की कमी नहीं है, हमारे पास माइंडसेट की कमी है। तो Yes. गरीबी माइंडसेट है। गरीबी पैसे की कमी माइंडसेट है। हम हमेशा शिकायत करते हैं, ओहो महंगाई बढ़ गई, ओहो इतनी फीस हो गई, ओहो इतना बिल हो गया, ओहो किराने का रेट इतना, ओ दूध का रेट इतना बढ़ गया, क्या करें? बट हमारे साथ साथ में हमारी जो सैलरी बढ़ी, हमारी जो इनकम्स बढ़ी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड भरो। और जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, जिसके लिए हम आभारी होते हैं, वो उतना ज्यादा मिलता है। चाहे आपको 1 रुपए का इंक्रीज मिला, बट आपने जो अपने बिल पे किए उसके लिए ग्रैटिट्यूड से भरे रहो। जीसस क्राइस्ट कहते थे, आज क्रिसमस का डे है तो मैं उन्हीं की बात पे बात करूंगी, कि वो कहेंगे मेरे प्रभु के राज्य में जिसके पास जो है उसको और मिलेगा, जिसके पास नहीं है वो छीन लिया जाएगा। दिस इज वेरी सिंबॉलिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसके जिसके पास जो है, यानी कि जो आभार से भरा है, उसे और मिलेगा। और जो शिकायत से भरा है, जो
उसके लिए आभारी नहीं है, जो उसके लिए ग्रैटिट्यूड से नहीं भरा, जो ग्रेटफुल नहीं है, उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसे वो नहीं पसंद। क्योंकि हर चीज लाइफ में हमारे लिए गिफ्ट है। एवरीथिंग इज अ गिफ्ट। आपने किसी को गिफ्ट दिया, मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने लेके ऐसे ही रख दिया, अच्छा तुम्हें तो ये लाना था। मान लो आपने उसको कोई शर्ट गिफ्ट की या कोई पेन गिफ्ट किया, अच्छा सस्ता सा ये 10 रुपए वाला पेन गिफ्ट कर दिया, तुम ये 500 रुपए वाली शर्ट में ले आए, तो व्हाट ही वुड डू, वो बोलेगा ला भाई अगली बार, या तो वो भी उठा के ले जाएगा, या फिर कहेगा कि चल अगली बार छुट्टी तेरी, अगली बार कुछ नहीं लाता। अगर ऑन द ऑपोजिट आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज भी लाया, तो नेक्स्ट टाइम ही विल बी मोटिवेटेड। ऐसे ही भगवान हमें रोज गिफ्ट दे रहा है, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहा है, हर समय कोई ना कोई गिफ्ट। हम जिंदा हैं, वो गिफ्ट है, हमारे आसपास हमारी फैमिली है, वो गिफ्ट है, हर चीज एक गिफ्ट है। हमने मान लो अपनी कोई भी चीज है, अपनी जॉब में हमें कोई टारगेट था, वो अचीव करना था और थोड़ा अचीव हो पाया, तो हम कहते हैं कि ओहो इतना काम रह गया। हमने स्टडी में कुछ करना था, मान लो हमने फिक्स किए कि हमने 8 घंटे पढ़ना है और हम 4 घंटे पढ़ पाए, अब क्या है, अब वो आपका माइंड सेट है कि आप आधे ग्लास खाली ग्लास को देखते हो या आधे भरे हुए ग्लास को देखते हो। ग्लास तो उतना ही है, पर आपका माइंड सेट है कि आपने आधे खाली ग्लास को देखा या आधे भरे हुए ग्लास को देखा। तो उसके लिए जो हो गया, उसके लिए ग्रेटफुल होना। तो दिस इज द मनी माइंडसेट, दिस इज द माइंडसेट टू गेट अबेंडेंस। समृद्धि अपने जीवन में तभी आती है, जो आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं। मान लो आपकी मैंने पिछली बार एक स्टोरी भी शेयर की कि वो जो लेडी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस लड़की का सारी बॉडी टूट फूट गई, एक फिंगर उसकी काम कर रही थी, तो शी वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और उसकी पूरी बॉडी रिकवर कर गई। तो ऐसा हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट पे लागू होता है ये। तो आज आप क्या करेंगे मनी अबंडेंस के लिए, मनी ब्लॉक्स को क्लियर करने के लिए? तो जो आपके पास है उसके लिए आभारी होंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको करना है कि जो भी बिल आपने भरे हैं उनके पीछे आप लिख देंगे, थैंक यू फॉर पेइंग द बिल, थैंक यू फॉर पेइंग द बिल, थैंक यू फॉर पेइंग द बिल। 5 बिल कम से कम आपने देखने हैं। अगर आपके पास फिजिकल कॉपीज नहीं है तो व्हाट्सएप पे खुद को ही व्हाट्सएप करके और उस पे थैंक यू लिख देना है। स्क्रीनशॉट्स हैं उसके लिए थैंक यू करके अपने आप को सेंड कर देना है। आप अपने आप को नहीं कर पाते तो मुझे कर दीजिए, ऑल राइट, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, तो मुझे पता चलेगा। और ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप आई हैव, वट एवर जो भी है उसके लिए एक आभार, हर चीज के लिए। तो आपके मनी ब्लॉक्स देखिएगा कैसे क्लियर होते जाएंगे, और कुछ ही दिनों में आपके पास कुछ ना कहीं से अननोन सोर्स से पैसा आ जाएगा। बस करना ऐसे ही है, और बिल्कुल दिल से, ये नहीं कि सिर्फ ऊपरी मन से। और दिस इज ग्रेटिट्यूड क्या है, वो आपके माइंडसेट की रिहर्सल है। ग्रेटिट्यूड ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करेंगे। तो शुरू में आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके इट विल बी योर मसल्स मेमोरी। हर मसल ट्रेंड हो जाएगी, क्योंकि हर मसल की अपनी एक मेमोरी है, हर मसल का अपना माइंड है। तो वो माइंड ट्रेंड हो जाएगा ग्रेटिट्यूड करने के लिए। सो करेंगे आप सभी? इज इट डिफिकल्ट और इजी? इजी या डिफिकल्ट? इजी है। सभी अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ डिफिकल्ट है या इजी। इज इट डिफिकल्ट और इजी? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। इजी है मैम। इजी है? करेंगे तो इजी है। करेंगे तो इजी है, करना है सभी को। इजी? Easy but need to be consistent with this हाँ, practice. रिमूव बट, रिमूव बट एंड से Sure, आई एम श्योर I दैट will आई do. विल, आई एम I श्योर will आई do विल। it. I will यस, do. आई एम डूइंग इट, अभी कर लो इसको, I'm डू gonna इट। do it. यस, सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट क्रिएट शिफ्ट। क्योंकि जैसे ही हमारा ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आता है ना, अभी सुखविंदर ने देखो कितनी बड़ी बात शेयर की, उसके भाई के साथ कितनी बड़ी मिस हैप हुई, एंड शी इज ग्रेटफुल कि मेरा भाई सेफ है। तो तुरंत लैक ऑफ, अदरवाइज शी वुड हैव चोजन कि मैं
रो लूं, सारा दिन रोती रहूं कि हे भगवान ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्यों किया, क्यों किया। जनरल सिनेरियो तो यही है ना, जनरल एटीट्यूड तो यही है कि एवरीबडी इज कंप्लेनिंग, बट शी चोजन टू हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वो तुरंत हमारा जो है, इससे हमारी लाइफ में हार्मनी होती है, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, पीस बिगिंस विद इन, एंड पीस इज क्रिएटेड विद इन, नॉट फाउंड आउटसाइड। क्योंकि पीस हमारे अंदर ही है ना, जो अंदर की चीज है वो अंदर ही है, उसको बाहर कहाँ ढूंढेंगे। और वो कब होगा, जब हमारी लाइफ में हार्मनी होगी, पीस तभी आएगी। सो रिलेशनशिप विद सेल्फ कैसे अच्छी होगी, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ शेप्स योर लाइफ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड स्ट्रेंथ, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ टीचेस अदर्स। क्योंकि जब हम खुद से अच्छा ट्रीट करने लगते हैं तो इमिडिएटली हमारी लाइफ में सब शिफ्ट होता है। पिछले वीक में जो थ्रू द वीक हमने प्रैक्टिसेस की, उससे आपको ये तो समझ आया होगा कि आपने आपने खुद से जब सेल्फ टॉक अच्छी करनी शुरू की तो ऑटोमेटिकली द थिंग स्विच्ड। वॉज इट देयर, वॉज इट देयर, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स शाउट आउट लाउड कि वी आर द पावर, वी आर द क्रिएटर। अब हम एक साथ बोलेंगे सभी। एंड आज जो है, यस, टर्न ऑन योर कैमरास फॉर अ वाइल, बस हम उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे। एंड कल के लिए ग्रुप कॉल के लिए आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट ग्रुप। सभी को जिनको ग्रुप कॉल्स में इन्वॉल्व होना है, दे विल डीएम मी, आई विल शेयर द लिंक पर्सनली, और उनको मैं ग्रुप में ऐड करूंगी। बिकॉज आई नीड अ स्मॉल ग्रुप। इस ग्रुप में सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाती, ग्रुप कॉल्स नहीं हो पाती, और डेली जूम पे मीटिंग पॉसिबल नहीं होती। ओके, ओके, लेट्स कम ऑन द कैमरा एंड वंस शाउट आउट लाउड, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। यस, I'm We the are the creator of my creator life. of our I'm the yes, life. creator we are We the are creators of our the life. We We are we are are the 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 creators of our life. ओके, creators सभी of एक साथ बोलेंगे, ठीक है। our We are the creators of our life. We creators We of are are the the creators of our creators of life. our life. We are these. the powers. We We have are the We are the powers. power. We We held are the the power. responsibility. We we have the responsibility. Yes, We have the responsibility. yes. We are power. We We are are power. power. And we are grateful. we are We are We are grateful. Yes. So thank you so much for joining in, everyone. Just once, stay on camera. I will take a snapshot. And thank you so much. And tomorrow we will have the group call in the evening. So DM me who wants to join the group. So that will be held in the separate group. Thank you so much. And share 1 minute, your मैम। experience. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मैम, हम आपके भी ग्रेटफुल है मैम, क्योंकि भगवान ने आपको बीच में हमारा एक जरिए बनाता है भगवान किसी ना किसी को, तो वो हाँ, आपको बिल्कुल बिल्कुल। बनना है हमारे लिए तो। थैंक यू सो मच, आपके थ्रू मैं भी काम कर पा रही हूँ। थैंक यू, हाँ, you. Thank थैंक you. थैंक यू। यू मैम। Yes, thank you. Share your thoughts and experience in the group. Thank you so much. Have a nice evening. Bye bye. Uh, बाय।